Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercises of chapter 1, A New World Order of your new English fairy book. Let's start with reading comprehension given on page number 5. Look at the pictures. आपको इन तस्वीरों को देखना है. Then fill in the blanks to learn the ways of reducing the risk of contracting the coronavirus infection. और फिर आपको सीखना है वो तरीके जिनसे आप कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के रिस्क से बच सकते हैं. तो आइए एक्सरसाइज करते हैं. फर्स्ट वन इज यू कैन सी अ पर्सन वेयरिंग अ मास्क. तो फर्स्ट क्या होगा? वियर अ मास्क. सेकेंड इज मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 meters फ्रॉम अदर्स इन अ पब्लिक प्लेस. थर्ड, वॉश योर हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 seconds. Cover your mouth and nose with a tissue when sneezing. जब आपको छींक आ रही हो तो टिश्यू पेपर से अपना मुंह और नाक कवर कर लीजिए. नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वोकैबुलरी सेक्शन. इससे पहले एक ज़रूरी बात, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी वर्ड ऑफ द डे और उसे कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगी उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग के साथ. आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. तो आइए शुरू करते हैं. दिस इज वोकैबुलरी सेक्शन गिवन ऑन पेज नंबर 7. क्रॉसवर्ड पजल दी हुई है और नीचे क्लूज दिए हैं. क्लूज की हेल्प से आपको इस पजल को कंप्लीट करना है. तो सबसे पहले हम करेंगे अक्रॉस, यानी जो लेफ्ट से राइट है. So as you can see on the board, first across is faithfulness to a cause. This is commitment. COMMITMENT, commitment. Then across, third number is the ability to adjust to new surroundings or situations. This is adaptability. ADAPTABILITY. Now fifth number across is the strength of mind in misfortune and the word is fortitude. FORTITUDE. Now it's the turn of downside words. So downside number 1 is a feeling of empathy for those who are suffering. This is compassion. COMPASSION. Then number 2, downside, the ability to recover quickly from difficulties. This is resilience. The spelling is RESILIENCE. Fourth number, downside, a tendency to be hopeful about the future. And the word is optimism. OPTIMISM. Next is exercise A given on page number 8. Fill in the blanks with the determiners. आपको determiners की help से इन blanks को fill करना है. So let's do it. First one, those buildings look so beautiful. Here we have filled those. I find only few of them beautiful. There is little food in the refrigerator for us. Is there any food left in the refrigerator? Each one of you needs to be present for the meeting. And the last one of us will have to carry out this task. Next is exercise B given on page number 9. Use these determiners to make sentence of your own. First is those. I have enjoyed those swings. Their, that is their house. Several, I reminded her several times not to use abusive language. Neither me nor my friend will go to the park. Fourth, although he is a brilliant scholar, but he stood fourth in the class. Whose book is this? Or he is the boy whose book is lost. So students, in this way you can write these sentences also, or you can make sentences on your own. Next we are going to do pronunciation given on page number 9.
अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कोई लेटर साइलेंट होता है या लेटर्स साइलेंट होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इसमें आपको जो साइलेंट लेटर है उसे अंडरलाइन करना है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम देखेंगे और साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करेंगे। सो फर्स्ट इज नेमोनिक। यहाँ पर फर्स्ट लेटर एम साइलेंट है, इसे आप अंडरलाइन करेंगे। सेकेंड इज डिसाइपल, यहाँ पर सी साइलेंट है। देन इज रैपर, इसमें W की कोई साउंड नहीं आती, दिस इज साइलेंट लेटर। देन फोर्थ इज नीड, हेयर K is silent letter. Then is solemn. Here N is silent, and then benign. In this word, letter G is silent. अब है बारी वर्ड ऑफ द डे की। इसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज माई वर्ड बैंक करेंगे। तो वर्ड ऑफ द डे है फैटीग। फैटीग मीन्स थकान, और इसका मीनिंग क्या है? फटीग का मीनिंग है एक्सट्रीम टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन और इलनेस। यानी अब आप खेलकर जब घर आएंगे बाहर से तो वेरी टायर्ड मम्मा, आई एम वेरी टायर्ड कहने की जरूरत नहीं है, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड कहने की जरूरत नहीं है। वेरी लगाए बिना भी आप अपने मीनिंग को क्लियर कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम फटीग। तो इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, आई एम सफरिंग फ्रॉम फटीग एंड स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। फटीग का मीनिंग जो है वो थकान, मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। यानी चाहे आप बहुत देर से कंप्यूटर पर बैठकर कुछ काम कर रहे हैं, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप दिमाग से मेंटली थकान फील कर रहे हैं, या फिर आप खेल कर आए हैं और आपका शरीर थक चुका है। तो चाहे वो मेंटल वाली थकान हो, दिमागी थकान या फिर शारीरिक थकान, दोनों के लिए आप वर्ड फटीग यूज कर सकते हैं। तो आइए अब करते हैं लास्ट एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ये आपको कमेंट सेक्शन में वर्ड ऑफ द डे कैसा लगा मुझे लिखकर बताना है। ये मैंने शुरू किया है आपकी वोकैबुलरी को एनरिच करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक वर्ड ऑफ द डे, और वो वर्ड होगा जिसे आप रोज यूज करेंगे, जिससे आपकी हैबिट में वो वर्ड आ जाएगा। तो अब वेरी टायर्ड कहने की जरूरत नहीं है, आप क्या कहेंगे? फटीग। लास्ट एक्सरसाइज इज माई वर्ड बैंक गिवन ऑन पेज नंबर 12। ये पेज नंबर 12 पर दी हुई है। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको 6 वर्ड्स लिखने हैं जो आपके दिमाग में आते हैं जब आप वर्ड पैंडेमिक सुनते हैं। यानी महामारी का नाम सुनते ही वो कौन से 6 शब्द हैं जो आपके दिमाग में आते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिखे हैं, आप इन्हें भी कॉपी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या दिमाग में आता है इस पैंडेमिक को सुन करके? मास्क। मास्क पहनना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, आपको दूसरों से दूरी बनाकर रखनी है। वॉशिंग हैंड्स, कम से कम 20 सेकेंड्स तक हैंड्स को वॉश करना है। फिर ये कोविड-19 क्या है? ये वायरस है। देन इज लॉकडाउन। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज किया था, किस लिए? जिससे हम सुरक्षित रह सके। और फिर आता है क्वारंटाइन। जो लोग इन्फेक्टेड हो गए उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एक्सरसाइजेस वेरी वेल. If you like the video, then don't forget to press on like button. Share this video with your friends and classmates. और सबसे ज़रूरी बात, कमेंट सेक्शन में मुझे वर्ड ऑफ द डे लिखकर बताना है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।